Good afternoon, everyone. So today let's continue same exercise, exercise 4B. In 4B, we have already done question number 1 and 2. Now we are going to start from question number 3. So all of you open book page number 58. Book page number 58, exercise 4B, question number 3. 1 and 2 we have already done. That questions are of simple multiplication. Find the product. Product mean we have to do multiplication. So now let's start from question number 3. Find the product. Here we are going to start from question number A part से हम start कर रहे हैं. ठीक है, all of you write down in notebook, in classwork notebook, write down 8. बच्चे listen carefully. इन नोटबुक, बुक पे नहीं, मैं कह रही हूं नोटबुक पे करना है आपने. हाँ जी, नोटबुक पे क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन बुक पे नहीं करने हैं. ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं. और ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ मार्जिन फॉर रफ वर्क. सी, मैम ने यहाँ पे एक रफ वर्क के लिए मार्जिन ड्रॉ किया है, तो बेटर है आप ड्रॉ कर लो एक मार्जिन. ठीक है, I hope all have noted down the question. Question number 3, find the product. Product means to say multiplication. हमने multiplication करनी है. A part है 6 multiply 3 multiply 13. तो इसके लिए क्या step है? First of all, you will multiply first two given numbers. 6 3s are 18. Then multiply by 13. अब हमने second step में 18 और 13 को multiply करना है. वो आप रफ वर्क में करोगे, बिकॉज 18 और 13 की मल्टीप्लाई जो है वो हम वर्बली नहीं कर सकते. ठीक है, वो लेंथी है, तो हम इसको रफ वर्क में करेंगे. ऑल ऑफ यू स्टार्ट टू डू मल्टीप्लीकेशन, एंड इफ एनीवन हैज डन, राइट इन चैट बॉक्स. वेरी गुड, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है. यस, 234 is the correct answer. So 234, this is the answer. I hope third part is clear to everyone. Whenever 3 or more numbers are given to calculate product, first of all start from the first step. You will start to do multiplication of first two numbers. जो आंसर आएगा देन रिमेनिंग नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, वो मल्टीप्लाई आप रफ वर्क में शो कर दोगे. सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट. I hope this question is clear to everyone. So next question I am giving. This question you will solve yourself, okay? And you will give the answer in chat box step by step. Step by step आप करोगे, okay? No issue, मैं वेट कर रही हूँ. मैंने जस्ट अभी आपको कहा ही है कि आप करोगे इस तरह. ठीक है, हाँ जी. तो नेक्स्ट हम, मैम अभी सॉल्व कुछ नहीं करेंगे, ना ही मैम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, और सबने नोटबुक पे करना है. Those who have done, they will, Aditya, okay. Those who have done, they will start to solve question number F. Question number F, 3 numbers are given, 180, 22 and 202. So what's the method? First of all, do multiplication of these two numbers. 18 और 22 की multiplication करो जल्दी से. Hurry up. Oh, Aditya has written answer. Okay, check कर लेते हैं. 18 and 22. इसमें हम 22 और 18 को सिर्फ कर रहे हैं. ठीक है, 0 को हम बाद में कर लेंगे, ऐड कर देंगे. $456 और साथ में 0 लगा के ये बन गया 4560 मल्टीप्लाई बाय 202. नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 456 को आप 202 से मल्टीप्लाई कर लोगे. ठीक है, एंड राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. ओ सॉरी, रॉन्ग है यहाँ पे बच्चे, 1 मिनट, चेंजेस हैं यहाँ पे. 1 2 2 है, मैंने 8 कर दिया. 6 7 + 2 9 और यहाँ पे 3 है, तो इट मीन ये आएगा 3960. डू करेक्शन, 3960 है मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है, नाउ आई इरेज दिस पार्ट बिकॉज मेरे पास स्पेस लेस है, आप उसके नीचे ही कर सकते हो.
सो 3960 को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करो 202 से। अगर आपने 396 को करना है तो आप 396 को भी 202 से कर सकते हो, बाद में आप 0 ऐड कर देना, ठीक है। बोथ द मेथड यू कैन यूज एनी मेथड फ्रॉम दीज। 0 0 0 2 0 0, ये तो सेम आ गया वही नंबर जो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। हाँ जी, so after multiplication we got the answer 7,99,920 is the answer. I'm repeating again, yes Krishna, your answer is right, but please add 0. Okay, on ones place digit 1 0 add kar lo. Now I'm repeating again same steps. What we will do if three numbers are given, first of all do multiplication of first two given numbers, or there is no any hard and fast rule कि you will take only first two numbers. आप कोई भी ये वाले नंबर लेके भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो रिमेनिंग नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड में हमारा आ जाएगा प्रॉपर आंसर, जो कंप्लीट आंसर है हमारा। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर एफ, सब बच्चे नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर एफ। one more question I'm giving. First of all, note down question number A and F in classwork notebook. Then those who have done, they will start to solve question number G. G part अपना start कर दो. Already you have book. Note down the question from book. Part G. Third का G part है. Those who have done, they will start to solve part G. Here 4 numbers are given, but no issue. आप सेम ही पैटर्न फॉलो करोगे, पहले फर्स्ट 2 नंबर जो आंसर आया उसको थर्ड नंबर से, फिर एक लास्ट स्टेप हो जाएगा कि जो आंसर आएगा वो फोर्थ नंबर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो आई होप ऑल these 2 sums are done by everyone. These 2 questions all have noted down so that we will start. If anyone is doing, please write in chat box. If anyone is doing, write in chat box. Otherwise, I'll erase this part. Param Noor, I think you are doing. Okay. Harveer, wait. Okay. So, question number 1, A तो already I think all have done. Question number A. हाँ जी, जी क्वेश्चन में मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रही हूँ। जी क्वेश्चन में 16 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 15. Now here 4 numbers, but method is same. First of all, do multiplication of these 2 numbers. 16 because I have very less space, that's why I have erased, but you don't need to erase the rough work. आपके पास नोटबुक है, मैम तो बोर्ड यूज कर रहे हैं, मैम तो क्वेश्चन भी इरेज कर रहे हैं ना, इसलिए आप अपना रफ वर्क है वो आप अपने पास ऐसे साइड पे लाइन लगा के आप करोगे, ठीक है। मैंने इरेज किया, बट आप उसको रहने दो एज इट इज ही, आपने रफ वर्क को इरेज नहीं करना। 16 और 12 की मल्टीप्लीकेशन करो एंड राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। 16 मल्टीप्लाई 12 192. ओके, चेक कर लेते हैं कि 192 है। यस, 192 इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 15. नेक्स्ट स्टेप में 192 को आप 70 से मल्टीप्लाई करो, 192 को 70 से। चेक योर आंसर वंस. I don't know whosoever has written answer in chat box. Please check your answer. 192 को 70 से मल्टीप्लाई करो, 192 को। वेरी गुड वंशिका, योर आंसर इज राइट, 13,440 है। तो क्या मैम भी अब साथ में रफ वर्क करें और यू कैन डू योरसेल्फ? आई थिंक तो यू कैन डू योरसेल्फ बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैम आपकी चैट बॉक्स से आंसर रीड करके मैम बोर्ड पे लिख रहे हैं।
तो सभी बच्चे मल्टीप्लीकेशन करो। मैम अब यहाँ पे रफ वर्क नहीं कर रहे, मैम आपका आंसर ही कॉपी करेंगे। डू मल्टीप्लीकेशन 192 मल्टीप्लाई 70। सब बच्चे अपने रफ वर्क पे प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करो। 192 को बेटर है 7 से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में आप 0 ऐड कर देना, राइट। 192 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, later on you will add 0 with answer. शाबाश। No, better to solve बच्चे. After that you will write your answer in chat box. Okay, Sakshi, very good. 13,440. Yes, good. Very simple multiplication. 192 multiply by 7. शाबाश। मैम भी चलो यहाँ पे एक बार कर ही लेते हैं। 192 को 7 से ही कर लेते हैं। ये आया 1344, इसमें साथ में मैंने 0 लगानी है, तो ये हो जाएगा 13,440 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप, डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। शाबाश। 13,440 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, डू मल्टीप्लीकेशन। 13,440 multiply by 15. Hurry up. ये आपने रफ वर्क में ही सॉल्व करना बेटे। ठीक है, ये वाली मल्टीप्लीकेशन आप अपने रफ वर्क में ही करो। अगर आपकी नोटबुक पे नीचे स्पेस है देन यू कैन यूज दैट स्पेस ना। ठीक है, सो विद कॉमा आंसर 2,01,600 is the complete answer. I am repeating again. अब अगर 4 नंबर्स आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, चाहे 3 नंबर गिवन है, 4 गिवन है, 5 नंबर्स गिवन है, वट एवर द नंबर्स आर गिवन, मैथड विल रिमेन सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 3rd नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आया वो नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। सपोज अब इसमें एक और नंबर हमें गिवन होता है, लाइक यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 भी हो, तो फिर जो ये आंसर आया उसको आगे एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, स्टेप्स क्लियर हो गए सबको? क्या करना है आपने, अगर 3 और 4 नंबर की मल्टीप्लीकेशन है तो सबसे पहले आपने फर्स्ट 2 नंबर, जो आंसर है 3rd नंबर से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आया उसको लास्ट या 4th नंबर से मल्टीप्लाई। क्लियर? नॉट वेरी टफ, दिस इज इजी। मल्टीप्लीकेशन ही तो है, इसमें टफ क्या है कृष्णा? टफ नहीं है कुछ भी। इससे तो आपकी मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस हो रही है, मैक्सिमम। आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है इन क्वेश्चन से, और जो मल्टीप्लीकेशन के लिए नंबर गिवन है वो तो वेरी स्मॉल है। हाँ जी, तो ओके, वेरी गुड। सो कंप्लीट दीज क्वेश्चन सो दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, this is the way, whenever you will listen carefully then you can understand each and everything properly, not in maths, each and every subject. okay, हाँ जी, वेरी गुड की समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट कर लो क्वेश्चंस को so that we will move to next question, question number 4. This is very much interesting question. Here is little bit change in multiplication, little bit change है। अगर आपको वो भी मेथड समझ आ गया ना, तब आप उसको भी अच्छे से कर लोगे। Those who have done, they will start to note down the heading. क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मींस टू से कि आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपने उसको प्रॉपर वे से करना है। जैसे हम करते हैं ना, कोई भी वर्क है या घर पे कोई फंक्शन है, तो अगर तो हमने उसको प्रॉपरली अरेंज किया,
कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंजमेंट प्रॉपर है, तो वो बहुत स्मूथली चलेगा। ऐसे ही होता है ना, अगर कुछ ऐसे फंक्शन रख लिया जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, हमने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, तो उस टाइम आपको लगेगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ऐसे ही होता है ना, सेम इन सुटेबल रीअरेंजमेंट क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, ठीक है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर आप उसको सॉल्व करोगे। ये रीअरेंजमेंट हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट जो हमारे क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या है, जो नंबर आए उसको करते गए मल्टीप्लाई, ठीक है, लेकिन इन रीअरेंजमेंट में क्या होगा, कैलकुलेशन बिकम इजी और थोड़ी सी स्मॉल सिंपल भी हो जाएगी। स्टार्ट फ्रॉम, ओके वेरी गुड। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई 613 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस लिसन कर लो बच्चे। अगर तो एग्जाम में आपको सिंपल ये क्वेश्चन गिवन हुई स्टेटमेंट कि फाइंड द प्रोडक्ट, तब आपने सिंपल जो नंबर गिवन है उसको आगे की आगे मल्टीप्लाई करना है। बट अगर स्टेटमेंट ये गिवन हुई कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, तब आप ये मेथड नहीं चूज करोगे। आपकी ये वाला अगर इस मेथड से करोगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने एक प्रॉपर मेथड यूज करना है। वो मेथड है, आपने ग्रुपिंग करनी है। जो 3 नंबर्स गिवन है उनमें से किसी 2 नंबर का ग्रुप बना देना है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये मेथड चूज हुआ है। और वो ग्रुप उन 2 नंबर का बनाओगे, वो 2 नंबर चूज करोगे जिन दोनों की मल्टीप्लाई के पीछे 0 आ रही हो, राइट, लाइक 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, लाइक दिस वे। तो एनीवन राइट इन चैट बॉक्स कि यहाँ पे कोई ऐसे 2 नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, जिसका ग्रुप बनाएंगे तो उसकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर है 100 या 200, कोई पीछे 0 वाला आ रहा हो। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। मैम स्टार्ट नहीं करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन करवाएंगे। शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कि अगर तो आपने, ओह वेरी गुड, शाबाश, इट मीन आप सब बच्चे बहुत अच्छे से मैम को लिसन कर रहे हो। वेरी गुड, यस, दिस इज द मेथड। इट मीन जो बच्चों ने चैट बॉक्स में ये आंसर कर दिया उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वेरी गुड। क्या किया हमने, कोई 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मीन्स टू से उनको आपने ब्रैकेट के बीच में लेके आना है, लेकिन वो 2 नंबर आप वो चूज करोगे जिसकी मल्टीप्लाई का आंसर 100, 200, 300 मीन्स टू से पीछे 0 आ रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। लाइक दिस वे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में 4 मल्टीप्लाई 25 इनकी ग्रुपिंग कर ली। आपको मैंने वो सबको याद है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में 4th प्रॉपर्टी की थी हमने, ग्रुपिंग वाली, वो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 613। क्लियर? डोंट अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, मैम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैम बार बार समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि आपने क्या किया, जो गिवन नंबर है उनमें से कोई 2 नंबर का ग्रुप बनाना है, लेकिन वो 2 नंबर का ग्रुप बनाओगे जिसकी मल्टीप्लाई का आंसर 100, 200, 300 लाइक दिस वे हो, कि पीछे 0 0 आ रही हो, ठीक है। वो 2 नंबर का आप ग्रुप बना लोगे। एकम, मैं फिर से समझा रही हूँ बच्चे, आप पहले ध्यान से सुन लो। आप सब बच्चे लिसन नहीं कर रहे हो जो मैम समझा रहे हैं, कि आपने 3 नंबर में से कोई 2 नंबर का ग्रुप बनाना है। 2 नंबर का ग्रुप इसलिए बनाना है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब आपने क्या किया, इन 3 नंबर्स में से अपने माइंड में, जब तक आपको माइंड में नहीं ना कैलकुलेशन आएगी कि अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, उसके लिए टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। साक्षी प्लीज वेट, पहले मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। हाँ जी, आपने 2 नंबर चूज किए और 1 नंबर को बाहर रहने दिए, इसकी ग्रुपिंग कर ली। अब आपने इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा, 25 4 100, ठीक है, 100 हो गया। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 613। अब आपने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो 613 को सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 613, ये वाली 2 0 साथ में ऐड होगी। सी
इस ग्रुपिंग से क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई है। अगर आप क्या करते, इस मेथड से करते, तो क्या होना था, पहले आपने 4 को 613 से रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, करना था ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई रफ वर्क नहीं यूज हुआ। पहले आपने 4 को 613 से मल्टीप्लाई करना था, फिर जो आंसर आना था उसको 25 से करना था। आंसर सेम ही आना था, लेकिन यहाँ पे विदाउट अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने उसका प्रॉपर सूटेबल रीअरेंजमेंट करके किया है कि आपको जब आपको क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, टेस्ट में, कहीं भी, तो वहां पे आपको प्रॉपर स्टेटमेंट आएगी, ऐसे 2 नंबर आपको गिवन होंगे सूटेबल रीअरेंजमेंट में, जिनको मल्टीप्लाई करके उनके पीछे 0 0 आ रहा होगा। ये जरूर होएगा, ऐसा नहीं होएगा कि आपको 3 नंबर गिवन है और आपको उसका जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 0 वाला नंबर ही ना मिले। मैं सिट प्रॉपरली बच्चे, हाँ जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। फोर्थ समी तो मैं समझा रही हूँ बच्चे, फोर्थ ही तो किया, एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 मोर क्वेश्चन, पहले आप वेट करो, एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो देन यू कैन आस्क, ओके। एक और क्वेश्चन करें जिससे आपकी और अच्छे से आपको क्लैरिटी होएगी कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर ई है, ई क्वेश्चन, ई पार्ट में 871 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 40। अगर हम इस क्वेश्चन को, तितिक्षा वेट बच्चे, पहले आप नेक्स्ट भी समझ लो, फिर मैं डाउट क्लियर कर रही हूँ, आपको करूंगी अनम्यूट, वेट करो। हाँ जी, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे कहा जाए कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो आपने कैसे करना था, पहले इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर आगे फर्दर मल्टीप्लाई करना था, राइट। लेकिन अब सूटेबल रीअरेंजमेंट है। ओह वेरी गुड साक्षी, आप तो कह रहे थे कि आपको डाउट है, लेकिन सबसे पहले आपने चैट बॉक्स में लिखा है कि ग्रुपिंग आपने पहले ही कर दी है, वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, और एकम आप भी ग्रुपिंग कर रहे हो, सी 2500 नहीं है ग्रुपिंग का, आप मल्टीप्लाई चेक करो दोबारा से। अब आपने कोई 2 नंबर की ग्रुपिंग करनी है जिसके पीछे पीछे 0 आ जाए, 2 0 आ जाए, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी से लिखो। और जो ग्रुपिंग कर रहे हो ना, मुझे उसका आंसर भी साथ में ही दो, लाइक आपने ग्रुपिंग करके मुझे कहा है कि 5 मल्टीप्लाई 40 की ग्रुपिंग हो रही है इसमें। कृष्णा नॉट कंप्लीट आंसर, फर्स्ट स्टेप का आंसर 5 मल्टीप्लाई 40 की ग्रुपिंग हो गई, वेरी गुड, यस 200। सो ग्रुपिंग करते हैं, जो नंबर की ग्रुपिंग हो रही है ना वो पहले हम आगे लिख लेते हैं, लाइक 5 मल्टीप्लाई 40, मल्टीप्लाई का साइन 871। अब आपने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिख दिया कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 4 5 20 तो 200 है, सी अब 200 आ गया ना, ठीक है। 200 में क्या है, पीछे 2 0 लग गई है। अब 871 से आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो ओनली 871 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, 0 आप बाद में ऐड कर दोगे, हाँ जी। सो 1742 और पीछे 2 0 लगा दी, तो दिस इज द आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, मैं तो दोनों का मेथड फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिस भी बच्चे को डाउट है लिसन कर लो अच्छे से कि मैम ने क्या कहा है आपको इस क्वेश्चन में। जब सूटेबल रीअरेंजमेंट है, ये आप क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट में चेक करोगे कि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट करना है। अगर सिंपल प्रोडक्ट है तो सिंपल करना है कि 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट है तो सबसे पहले आप ग्रुपिंग करोगे, कोई 2 गिवन नंबर चूज करोगे जिनके पीछे हमें 0 मिलेगी, ठीक है। हाँ जी आकाश, बेटर टू राइट डाउन योर डाउट इन चैट बॉक्स कि कहां से क्लियर नहीं है, बिकॉज मैंने 1 क्वेश्चन करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज का। सिंपल आप मुझे हिंट दे सकते हो, सिंपल हिंट। those who have done they will start to solve question number 4D exercise, question 4D। मैम प्लीज साक्षी को अनम्यूट करना, अगर साक्षी आप, हाँ जी 4D
4C को क्रॉस कर दो. All of you put cross on exercise 4C. Now we are going to start 4D exercise. Only one question we are doing. Only one question, page number 61. And Rajdeep ma'am. Ma'am. हाँ जी. Ma'am. Ma'am, if we have to do. Ma'am, we have to do. हाँ जी, एक्सरसाइज 4D 4C को क्रॉस कर दो. पुट क्रॉस ऑन 4C. 4D का सेकंड क्वेश्चन करना है हमने. 4D का सेकंड क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड. द शूज. सोल्यूशन से द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज ₹979. कहते शूज के पेयर की कॉस्ट है 979 रुपीज. What will be the cost of 173 such pair of shoes? कहते तो इस तरह के 173 शूज की कॉस्ट कितनी होगी. वन शूज की कॉस्ट गिवन है, वन पेयर ऑफ शू की कॉस्ट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 173. हाँ जी, साइड बाय साइड फिल गूगल फॉर्म. आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में पेज नंबर आई हैव ऑलरेडी रिटन हरवीर, पेज नंबर 61, सी ऑन बोर्ड. हाँ जी, क्वेश्चन में 1 की वैल्यू गिवन है और आपने ज्यादा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लीकेशन. जब 1 की वैल्यू गिवन हो और हमने ज्यादा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऑलरेडी यू हैव डन इन 3rd क्लास, ठीक है, तो वहां पे क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है. जब 1 की वैल्यू गिवन है और वी हैव टू कैलकुलेट द लार्ज वैल्यू. सो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से. कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज रुपीज. कॉस्ट कितनी है, 979. कॉस्ट ऑफ 173 पेयर ऑफ शूज. ऐसे वाले 173 की कॉस्ट कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 173. ठीक है, 979 को नीचे ही आपने रफ वर्क नहीं है ये, आपने प्रॉपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है. इसकी नीचे मल्टीप्लाई करोगे, प्रॉपर सॉल्व करोगे. Do multiplication. Now add these numbers. हाँ जी, so the answer is ₹1,69,367. I am repeating again statement sum of exercise 4D question number 2. कह रहे हैं कि 1 पेयर ऑफ शूज की कॉस्ट गिवन है 979 रुपीज और हमने किसकी कैलकुलेट करनी है, कितने पेयर ऑफ शूज की, 173 की. सो कैसे पता चला हमें कि ये मल्टीप्लाई है, whenever the number is given in, we have to calculate the large number and 1 की वैल्यू गिवन है तो वहां पे मल्टीप्लाई है. तो आपने क्या किया, कॉस्ट स्टेटमेंट फ्रेम की. कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज ₹979. Then cost of 173 pair of shoes, multiply these two numbers, and these multiplication you will not show in rough work. This is the proper multiplication you must do. Solve proper multiplication, and the answer is ₹1,69,367.